Hello friends, welcome to the channel Let's Learn CS. I hope all of you are fine and staying at home, and I also hope that this lockdown because of coronavirus will be over soon. So till now let's study here with me Kantarana on my channel Let's Learn CS. Today I will explain features of C++. We know that C++ carries all the features of C, plus it provides some additional features. Now what are these additional features? These are objects, class, abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing. Let's discuss them one by one. Objects क्या होते हैं? Objects कोई भी आपकी रियल टाइम एंटिटी हो सकती है और रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है. It can be a person, place or thing about which we need to write the program. An object contains some data plus some functions to manipulate this data. So suppose student is the example of objects, and this objects may have some data like name of the student, his date of birth, his marks, and functions to calculate the average of his marks, to display his name, date of birth and the marks. So this is how an object may be represented. Now coming to the class. Class is a user-defined data type that behaves like a built-in data type. Class क्या है आपका? User-defined data type है that behave like a built-in data type. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज जब हम सी में करते हैं, सी में इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब क्या है? ये बिल्ट इन डेटा टाइप है. कंपाइलर ऑलरेडी नोज हाउ मच मेमोरी टू सेव और allocate to a integer variable or character variable. But in the user defined data type, user defines it that how much memory will be allocated to the particular variable or the object of a class. Now once we create a class, we can create any number of its objects. We can create its object simply by writing the class name, object name and the semicolon, just like as we did for the built-in data types. जैसे मुझे इंटीजर टाइप का सी वेरिएबल क्रिएट करना है, ये सिंटेक्स होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन. सेम सिंटेक्स हमने इसके लिए यूज किया. क्लास नेम यहाँ पे क्या हो गया? डेटा टाइप. Object name is the name of the variable, then semicolon. This is why, because this data type was defined by the user, but I used it just like a built-in data type. So this class is user defined data type that behaves like a built-in data type. Class डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है हमारा? Class can be created using the keyword class. Then we have to specify the name of the class. Then there will be some data. We use some access specifiers in it, and this is how a class can be declared. Now what is public here? This is a access specifiers. We use a number of access specifiers like public, private or protected in C++. If I do not specify any access specifier, then it will be treated as private by default. So this is how a class can be declared. Now coming to the abstraction and encapsulation. Abstraction क्या होता है आपका? Abstraction means showing only essential features without background details.
जैसे जब हम कार ड्राइविंग करते हैं तो एक्सेलरेटर पे पैर रखेंगे, स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे इंक्रीज हुई ये हमें नहीं पता। तो दिस कॉन्सेप्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को शो करेंगे, बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देंगे। एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं हम अचीव करते हैं इन्हें एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो अभी मैंने बताया प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे प्राइवेट है, इस सेक्शन में मैंने जो भी डेटा या फंक्शंस डिफाइन किए हैं उस डेटा को हम आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है और इसी वजह से डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका C++। देन कमिंग टू एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस सम फंक्शंस that operate on that data. So this is encapsulation where we have binded the data and functions together. Now coming to the next feature of C++, that is inheritance. Inheritance का अगर मैं जनरल मीनिंग में बात करूं तो जनरल मीनिंग क्या होता है, लाइक चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स को इनहेरिट करते हैं। कुछ फीचर्स वो उनकी खुद की होती है, कुछ फीचर्स मदर से इनहेरिट करते हैं या फिर कुछ फीचर्स को अपने फादर से इनहेरिट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास acquires the properties of another class. एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इस फीचर की वजह से एक बहुत एडवांटेज होता है हमें, जिसे हम कहते हैं रीयूज एबिलिटी। अगर हमें किसी प्रोग्राम को दोबारा यूज करना है तो हमें स्क्रैच से कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन यूज दैट एज इट इज एंड वी कैन ऐड सम मोर फंक्शनैलिटीज इन इट। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारे पास कोई एक क्लास होती है, उसमें कुछ डेटा एंड कुछ फंक्शंस होते हैं that manipulate and data. We can inherit the features of this class and the syntax for it is, here comes the access specifier that can be public, private or protected, and then B, and here it contains its own features. So this is the syntax for inheritance. The old class is known as the base class and the new class is referred to as derived class. अब क्लास D, क्लास B की कौन कौन से फीचर्स को इनहेरिट करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेस स्पेसिफायर। अगर हम प्राइवेट करते हैं, पब्लिक करते हैं या फिर प्रोटेक्टेड करते हैं तो अलग अलग फीचर्स को हम इनहेरिट कर पाएंगे। किस मोड में कौन सी फीचर को इनहेरिट कर सकते हैं वो आगे देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस को डिटेल में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स टेकिंग मोर देन वन फॉर्म। किसी एक पर्टिकुलर थिंग से मल्टीपल वर्क्स करवाना कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स का होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इट कैन बी अ फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, अगर मैंने इन्हें किन्हीं कॉन्स्टेंट्स के साथ में यूज किया है तो ये क्या करेगा, उन कॉन्स्टेंट्स का एडिशन हमें रिटर्न करता है। बट अगर यही ऑपरेटर मैं दो स्ट्रिंग्स के साथ अगर यूज करूं, सपोज ए एंड बी आर हियर
two strings, then what it returns? It returns the concatenation of the two strings. So here we have only one symbol, but it is performing more than one task. So this is called the operator overloading. Similarly function overloading. फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, हमारे पास फंक्शन नेम एक ही होता है बट वो मल्टी वेज में वर्क करता है. लाइक यहाँ पे है हमारे पास फंक्शन है सम, बट फर्स्ट सम क्या कर रहा है, इट विल ऐड टू इंटीजर्स. सेकेंड सम क्या कर रहा है, इट विल ऐड वन इंटीजर एंड वन फ्लोट एंड विल रिटर्न अ फ्लोटिंग वैल्यू. द थर्ड फंक्शन विल ऐड थ्री फ्लोट वैल्यूज एंड विल रिटर्न float value. So we have only one function name, but it is performing more than one operations. So it is more than one forms. So it is referred to as function overloading. Now coming to dynamic binding. Dynamic binding भी आपकी दो टाइप की होती है. It can be early binding और late binding. अब अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग क्या होता है. बाइंडिंग मीन्स हम फंक्शन कॉल करते हैं, हर फंक्शन कॉल के साथ एसोसिएटेड कोई फंक्शन कोड होता है. उस फंक्शन कोड का कंपाइलर को किस टाइम पर पता चलता है, अगर एसोसिएटेड फंक्शन कोड और फंक्शन बॉडी एसोसिएटेड विद फंक्शन कॉल is known to compiler at compile time. So it will be known as early binding. अब अगर यही इंफॉर्मेशन इससे कंपाइलर को पता चलती है रन टाइम पे, तो ये क्या कहलाता है आपका लेट बाइंडिंग. पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शंस की हेल्प से हम लोग डायनामिक बाइंडिंग को अचीव कर सकते हैं C++ में. So this is dynamic binding. Now coming to the message passing. Message passing में क्या होता है, objects communicates with the class through message passing. कैसे communicate करते हैं objects? Suppose कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने किसी क्लास का जिसमें शो नाम का कोई फंक्शन है. वी कॉल द फंक्शन शो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस. S1 इज द ऑब्जेक्ट नेम, शो इज द फंक्शन नेम ऑफ द क्लास. हियर दिस इज डॉट ऑपरेटर. We access the members of the class using dot operator, and here it can have its argument list. Argument list में कोई भी आपके arguments हो सकते हैं, variables हो सकते हैं, जिनके थ्रू वो कोई information क्लास को पास करेगा. So these are the features of C++. I hope बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं आपको.